کیا شان کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین کا۔ کیا شان کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین کا۔ میں نے تو ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، میں نے تو ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، اور اس پہ اختیار ہے میرے حسین۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی۔ بیدار ہو گئے؟ میں ذکر شروع کرنے والی ہوں، جو ابھی بیدار نہیں ہوا بیدار ہو جائے۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی مجھے پستی نظر آئی۔ کبھی پہلوان نے بیچی کبھی حر نے خریدی، کبھی پہلوان نے بیچی کبھی حر نے خریدی، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ سب تعریفیں ہیں پروردگار کے لیے، وہ جو لائق تعریف ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو ودود ہے، جو غفار الذنوب ہے، وہ پروردگار جو عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ پروردگار جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ پروردگار جو بھاپ کے ذریعے بادلوں کو تشکیل دیتا ہے، وہ پروردگار جو بادلوں میں پانی کو بھر دیتا ہے، وہ پروردگار جو کن کہہ کر کام کو کر دینے والا پروردگار ہے، وہ پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار جو رات کی تاریکی پر چمکتے ہوئے ستارے سجا دیتا ہے، وہ پروردگار جو تین تین پردوں میں اندر اندھیری کوٹھڑی میں انسانوں کی مکمل شکل بنانے والا ہے، وہ پروردگار جو انسان بنا کر پھر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حضرت انسان تو میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تمام تر تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، صلو و سلام ہے محمد و علی محمد کے لیے جو لائق تعریف ہے۔ بس آئیے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے رسول میں نے تجھے بھیجا رسول بنا کر۔ توجہ ہے، بیدار رہیے گا۔ آج کا دن جو ہے یہ منسوب ہے نا دو ہستیوں سے، ایک ہمارے رسول اور ایک ہمارے امام۔ اب ہم دونوں کا ذکر کریں گے، کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تو آئیے رسول سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول، اے رسول آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسول بن کر آئے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں۔ تھوڑی سی متوجہ ہو جائیے، رسول بن کر آئے ہیں، یعنی جب یہاں آئے ہیں تو رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو رسول بھی ہیں، بعد میں اللہ نے کہا کہ آپ رسول ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، تھوڑی سی اپنی توجہات کو بلند کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب میں نے آپ کو بھیجا تو آپ رسول ہیں، آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہاں آ کر رسول نہیں بنے ہیں، یعنی وہاں سے آئے ہیں تو رسول ہیں، یہاں آ کر رسول نہیں بنے ہیں، یعنی جب یہاں آئے تو ایسا
गिरता, वो जो जिस्म नहीं रखता। तवज्जो कर रहे हैं आप, बेदार हैं, ज़बानों को मुअत्तल कीजिए मजलिस में बैठे हुए। ये ज़बानें हमारी अपनी नहीं हैं, ये जिनकी ज़बानें हैं उन्हीं के साथ जिक्र करते हुए गुजर जाए लम्हात, और लम्हात की कोई कीमत नहीं है। ऐ रसूल, आप कब से रसूल हैं? कहा वही वो था, उसने अपने नूर से नूर जुदा किया, अब एक वो हो गया और एक मैं था। एक मैं और एक वो, सब अपने ज़बानों को मुअत्तल कीजिए, अपने समातों को बुलंद कीजिए। एक वो था, एक मैं था, वो तौहीद थी, मैं नबूवत थी। वो अल्लाह था, मैं नबी था, वो अल्लाह, मैं नबी। एक वो भी अल्लाह, एक था, मैं नबी, एक था और कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह मुझसे इतना प्यार करने लग गया, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने की, कहा ऐ मोहम्मद तू मेरा हबीब है। बस इस हबीब के लिए अल्लाह ने कहा अब कायनात को सजाऊंगा मैं तेरी मोहब्बत में। अल्लाह ने फिर कायनात को सजाया। 2 दिन के बाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो जाएगा, फिर आपको जगह जगह एक बैनर नजर आएगा, जिस बैनर पे लिखा होगा ईद मिलादुन नबी, यानी आप भी इकरार कर रहे हैं। एक गदीरी सलावत पढ़िए मोहम्मद। अगर गदीरी सलावत ऐसी है तो खैबरी सलावत है। कनीज़ा ने जनाब सैयदा आप मजलिस में बैठी है, बेदार होके बैठ गए। अब वो बैनर जो है उस पे क्या लिखा है? ईद मिलादुन नबी, यानी आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जब नबी इस दुनिया में आए तो नबी हैं। मैं इस बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, मैंने रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह, हर दुनिया का कोना कोना इस बात का ऐलान कर रहा है कि आप नबी हैं, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, तो आप नबी कब से हैं? जब आप सबसे पहले बने तो फिर आपको सबसे पहले आना चाहिए था, आप सबसे बाद में क्यों आए हैं? सबसे आखिर में क्यों आए? आपको पहले आना चाहिए था। क्यों? आप सबसे पहली मखलूक हैं, अल्लाह ने सबसे पहले आपको खल्क किया है और आप सबसे आखिर में आ रहे। तो अक्लमंदी इससे मुझे एक जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले आप एक स्कूल बना लीजिए, स्कूल में आप एक टीचर रखिए जो प्राइमरी क्लास तक पढ़ा रहा हो, पहली जमात से लेकर 5 जमातों तक पढ़ा रहा हो। इसके बाद आप दूसरा स्कूल बनाएं मिडिल क्लास का, फिर कॉलेज बना लें, हाई स्कूल बना लें, कॉलेज बना लें, यूनिवर्सिटी बना लें। अब यूनिवर्सिटी के टीचर को, प्रोफेसर को, उस्ताद को आप बुलाकर कहें इस प्राइमरी स्कूल की केजी क्लास को, क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि इतना बड़ा प्रोफेसर आकर उस केजी क्लास को तालीम दे? हर्ज कोई नहीं है, उस्ताद वो भी है, पढ़ा वो भी सकता है, इल्म उसके पास भी है, लेकिन उसका स्टेटस वो नहीं है कि वो आगे केजी क्लास को पढ़ाए। ऐ अल्लाह का हबीब, अल्लाह ने बनाया सबसे पहले है, भेजा सबसे आखिर में, भेजा सबसे आखिर में, बनाया सबसे पहले है। मेरी पीछे वाली बहनें जो अपने ज़मानों को मुअत्तल करना, मैंने कहा या रसूल अल्लाह एक और दलील दे दीजिए कि आप रसूल कब से हैं? उन्होंने कहा जब कुछ ना था अल्लाह ने आसमानों को खल्क किया, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीनें बिछती चली गई, जब ज़मीनें बन गई तो अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं कायनात को खल्क करूँगा। अल्लाह ने कायनात को खल्क किया, उनमें से पहली मखलूक जो अल्लाह ने बनी आदम बनाई, तो अल्लाह ने आदम और हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा, आदम पहले नबी है। मैंने कहा उसके बाद जब वो पहले नबी, उसके बाद आप आ जाते। कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे उधर ही रखा जिधर अल्लाह ने मुझे खल्क किया था। उसके बाद अल्लाह ने और नबियों का सिलसिला शुरू किया, एक के बाद दूसरा नबी आता रहा, दूसरे के बाद तीसरा नबी, तीसरे के बाद चौथा, यूं सिलसिला जारी रहा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप आखिर में क्यों आए? तो रसूल ने मुझे एक जवाब दिया, तारीख में मैंने पढ़ा कि देखो सबसे आखिर में उसे भेजा जाता है जिसका इल्म सबसे ज्यादा होता है। खुदा सलामत रखे इन ज़बानों को जो मुश्किल अल्फाज पे बोलते हैं। खुदा उन माओं पर सलामती नाज़िल करे अगर सलामत है, अगर इस दुनिया से चली गई है जिन्होंने अली वाले पैदा किए, तो खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहले जिसको खल्क किया उधर ही रखा,
या रसूल अल्लाह एक बात और बता कि ये जो आप आखिर में आए हैं इसकी कोई मजबूत दलील है? आना सबसे पहले चाहिए था आपके और मेरे मुताबिक। मेरी तरफ देखिए, आपके और मेरे मुताबिक सबसे पहले आना चाहिए था ना, सबसे पहले खल्क हुए ना, आखिर में क्यों आ रहे हैं, बाद में क्यों आ रहे हैं? मैं आपके सामने एक मिसाल दूं कि देखिए आपके पास कुछ बल्ब हो जो बल्ब रोशनी करते हैं, तवज्जो है ना बहनों की। आप एक बल्ब उठाएं और आप एक चौराहे पर लगा दें, कुछ शरीर बंदे आए आके उस बल्ब को बुझा दें, तोड़ दें, आप कुछ देर के बाद दूसरा बल्ब निकालेंगे। जो समझ गए हैं, जो नहीं समझे एक दूसरे की उंगली पकड़ के चलते हैं समझने के लिए। मदीने की गलियों में आज रसूल का जिक्र हो रहा है, आप दूसरा बल्ब निकालेंगे और दूसरा बल्ब को लटका देंगे। अब जब जैसे दूसरा बल्ब लगाया वही शरीर बंदे आए, उन्होंने बल्ब को तोड़ दिया, जैसे तोड़ा आपने तीसरा बल्ब निकाला, कई बल्ब आप लगा चुके, अब एक बल्ब रह गया, अंधेरा में छा गया है, इतना अंधेरा है कि रोशनी होने का नाम नहीं ले रहा, इतना गहरा अंधेरा है, बल्ब भी एक है, उसके बाद कुछ नहीं है, एक ही बल्ब रह गया है और अब बल्ब आपने लगाना है तो आप कुछ इंतजामात करेंगे। बस अल्लाह ने वही इंतजाम किए, अल्लाह ने आदम को भेजा, अल्लाह ने शीश को भेजा, अल्लाह ने इद्रीस को भेजा, अल्लाह ने इलियास को भेजा, अल्लाह ने नूह को भेजा, अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, अल्लाह ने याकूब को भेजा, अल्लाह ने यूसुफ को भेजा। नबी आता रहा, मूसा, यूसुफ, याकूब, इसहाक, इस्माइल, लूत, मूसा, ईसा, ये सारे नबी आते रहे। जब सारे नबी आकर चले गए तो अंधेरा छा गया, हर बंदा मायूस है। कोई आएगा जो अंधेरे को छट देगा, जो उजाला कर देगा, जो रोशनी कर देगा। तो कई हजार साल के बाद अल्लाह ने एक नबी भेजा उन उम्मियों में से जिसने आगे दुनिया को बताया। बना तो पहले था, बनाया आखिर में। अल्लाह ने जब भेजा तो वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पहुंच गई जो मैं पूछना चाह रही थी। और जो है अल्लाह ने जब भेजा तो कहा वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, मैंने आपको नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा। फिर से जुमला इस्तेमाल कर रही हूँ, फकत 2 दिन रह गए रबीउल अव्वल में और आपका और मेरा दिल खिल जाएगा। वही बात कह रही है हबीब, आपको नबी बनाकर भेजा। हम उस नबी को नहीं मानते जो यहाँ आकर नबी बने। नबी कौन होता है? जो मनसूस में अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से रसूल नबी बनकर आता है। कोई ऐसा नबी है जो यहाँ आके नबी बना हो? कोई एक नबी दिखा दे, हजरत आदम से लेके मेरा रसूल तक कोई नबी ऐसा हो जो पहले नबी नहीं था, यहाँ आकर कहा मैं नबी बन गया? नहीं, वहां से बनकर आए ना, वहां से नबी बनकर आए ना। ये मनसूस में अल्लाह है, ये ओहदा अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, ये अल्लाह की तरफ से अदा की जाती है। अल्लाह ही नबी बनाता है, अल्लाह ही रसूल बनाता है, अल्लाह ही पैगंबर बनाता है। यानी ये ओहदा अल्लाह का ओहदा है, ये अल्लाह जिसे चाहता है ये ओहदा अदा कर देता है। नबूवत खत्म हो गई, जैसे आप खामोश हो गए हैं, नबूवत खत्म हो गई। अब जब नबूवत खत्म हो गई है तो अब दुनिया तो फिर जहालत की तरफ चली जाएगी। परवरदिगार तुम्हें 1,24,000 पैगंबर रसूल नबी भेज दिए, अब सब पीछे कौन है जो हिदायत करे? बात सब तक नहीं पहुंची, थोड़ा आसान कर दूं। कोई, जैसे मैंने पिछली मजलिस में भी ये मिसाल दी थी, लेकिन ये वही मिसाल नहीं है, थोड़ी सी चेंज कर दूं इस मिसाल को। आप कहीं जा रही हैं तो अपनी ही जगह पे किसी को ठहरा कर जाएंगे, ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगी। जिन्होंने सुनी थी वो मिसाल उनके जहन में आ गई है, बस यही मिसाल देना चाह रही हूँ मैं। आप उस जगह को अकेला तो नहीं छोड़ के जाएंगी ना, किसी को बिठा के जाएंगी। तो किसको बिठा के जाएंगी? अपने जैसे को। क्यों? आप ऐसा कीजिए,
जो आप जैसे काम ना करता हो उसको बिठा दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं पिछली मजलिस को कॉन्टेक्ट दूं अपनी मजलिस के साथ, आपके मोहल्ले का डॉक्टर जा रहा है, बात ध्यान में आ गई, उसकी जगह मोची नहीं बैठेगा, धोबी नहीं बैठेगा, डॉक्टर की जगह डॉक्टर ही आएगा, वकील की जगह वकील ही आएगा, यानी नबी की जगह नबी ही आता है। अब नबी चला सिलसिला खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, खत्मी मर्तबत आ गए, खातमुल मुरसलीन आ गए, सरदार अंबिया आ गए, ताजदार अंबिया आ गए, तेरे और आपके रसूल आ गए, अल्लाह के हबीब आ गए, सब कलमा पढ़ने वाले हैं। और जब मिलाद शुरू होगा ना तो तब सबके चेहरे खिल जाएंगे। आओ मैं बताऊं कि रसूल है क्या, तो फिर उसके चेहरे खिलाना। आज ज़बानें खोल लीजिए, कलमा पढ़ने वाले आज इकरार कर लीजिए कि 2 दिन के बाद जो महीना शुरू होने वाला है वो किस नबी का महीना है। तो खातमुल मुरसलीन आ गए हैं, नबूवत खत्म हो गई है, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो जब जा रहे हैं तो दुनिया को ऐसे ही छोड़, कोई ऐसा होना चाहिए